Sorry, there was some technical error on my side. So we were actually discussing about what we understand by the word mental health. So I would love to have the audience participating through chat box, that what they understand by mental health. I think collectively we can learn about it. I think we have attended a lot of sessions till now. What do you gather? Maybe you have wrong answers, but still we could try what we understand by mental health. And until then, we'll have our expert as well. He's stuck up somewhere, but we'll start the session in 5 minutes. I would love to have your participation. All right, we have a lot of participants now. So first of all, hi and welcome to each one of you who has taken out time from your schedule and has made an effort towards learning about mental health, getting aware about mental health. So first of all, welcome to each and every one of you. And I would like to start today's session with a small activity. I think that will help us engage. We already have a lot of answers about mental health. All right, so it was Ms. Harpreet's question. That was, what is mental health? Arika says, mental health is a state of well-being, emotionally, psychologically, spiritually, and physically. According to me, what I understood about mental health is social, psychological, and emotional well-being. It's state of mind. All right, mental health, like physical health, is an important aspect of our life. The way we take care of our physical health, we should take care of our mental health. I think, Ms. Harpreet, you would have got an idea about what exactly mental health is. Just the way we talk about physical health a lot many times, we have another aspect of health, that is mental health. And NGO Sarthi is just making a small effort to talk about mental health. So exactly everybody told कि mental health बहुत उसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं, हमारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट कि मैं क्या सोचती हूँ, कैसे अपना लाइफस्टाइल है, वो भी मेंटल हेल्थ का पार्ट है, से लेकर सोसाइटी, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वेलबींग, इमोशंस को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ में आती है. एग्जैक्टली. All right, now I would request each one of you to write one sentence in the chat box with I am. You don't have to write your name. You could write anything except that. I won't give you an idea about what you have to write. I want to know all of you. You could write, I'm, okay, we started having responses. Great. Thank you. I'm really happy to have active participants. And it would be great if you feel comfortable, please switch on your videos. Thank you. Okay, I am reading all the responses and I have seen all positive and great responses as of now. Thank you. What about others? आप I am से कोई भी सेंटेंस बनाकर चैट बॉक्स में डालिए अपने नाम के अलावा. आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं वो सेंटेंस डालकर I am. I'm waiting for all the response. Wow, we're getting so much positive response. Thank you. I think we all are getting smiles reading each other's responses. Thanks a lot.
Okay. You could also tell yourself about yourself. That's interesting. I am psychology enthusiast. I'm a social worker. Really nice. Thank you so much. I'm able to see a lot of you switching on the videos. Thanks. That's very encouraging. Thank you. And I would like to apologize for the delay we are having today in the webinar. In fact, doctor is stuck up somewhere, but that doesn't mean that we won't talk about mental health. So if you have any questions related to it, we would love to discuss, and maybe we can have a very healthy discussion. We have 31 people here. So let's make this a very positive experience. Thanks a lot for switching on the videos. Thanks, Erica, Dimple, Sakshi, Mr. Navneet. Thank you. All right. So if you have any notebook or page around you, could you please get it? Please fetch any paper that you have, just a pen or pencil, whatever is comfortable, and a paper. Yeah. So I'm able to see a lot of you are already getting it. Interesting. I can see one hand raised. It would be great if you could type out your query or anything you want to share through the chat box. आप जो भी कहना चाहते हैं, please chat box use करके बता दीजिए, because I won't be able to unmute anyone. We'll keep all people muted today. Thank you. All right. I see that a lot of you have already got your pencils and pages. So now after this announcement, I'll be giving you 1 or 2 minutes break wherein you have to make your logo. All right, we are not logo makers, हम इतने creative नहीं हो सकते, but अपनी journey, अपने lifestyle, अपनी personality को आप 1 minute analyze करिए, और उसके बाद जो आपके characteristics जो बहुत prominent है, जो आपको लगता है exactly मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, उसको लेकर आप अपना लोगो बनाइए. आई थिंक दिस 1 मिनट आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपके एग्जैक्टली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप क्या चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं. तो एक लोगो बनाइए जो आपको रिप्रेजेंट करता है. So name the logo as your names. For example, I'm making a logo that is Ananya logo, जिसमें मेरे बारे में बहुत सारी चीजें रिवील होती हैं उस छोटी सी आर्ट से. So I think we'll give 1 or 2 minutes for it. And if you are comfortable, then please do share and show us what logo you have for yourself. And if you're done with the self analysis activity, तो आप एक digital thumbs up या ऐसे करके thumbs up दिखा सकते हैं. So please take your time, take 1 minute, analyze yourself and make a logo for yourself.
if you are done making the logo, please feel free to show your notebook the thing that you have made. All right, that's interesting. I'm not able to actually get what it is. Just a second. Could you again show that, Mr. Navneet? Nice. Okay, so I think you just made N and S around, I think, clouds and something. That's interesting. Okay. Yeah, we could make a logo related to our name or maybe our life, some thought-provoking thing that happened, or हमारे जो major characteristics हैं. Okay, Sakshi is also showing, wow, she dreams. Wow, that's beautiful. Thank you. Okay, got it, Mr. Navneet. Thank you. टेक योर टाइम, नो हरी, एनालाइज जो आप सोचना चाहते हैं, आप उसको डिपिक्ट करना चाहते हैं. आई थिंक दिस विल हेल्प अस एनालाइज आवरसेल्व्स बेटर. Thank you, Miss Sakshi, for that beautiful comment in the chat box. Thank you. I am actually waiting for all of you to give me a thumbs up when you're done with the activity. Then we'll love to move forward. For those who have joined just now, हम एक छोटी सी self analysis activity कर रहे हैं. We have to make a logo for ourselves. So वो logo आपके name से related, life, incidents, आपके कोई characteristics हैं, कोई prominent traits हैं जो आपको unique बनाते हैं, जो आपको सबसे अलग बनाते हैं, वो आप एक छोटे से लोगो में प्रिपेयर कर सकते हैं. If you think ये 2 minutes enough नहीं है, so maybe after the session, wow, I was able, wow, that's beautiful, sunflower on behalf of Papa. Wow, thank you. Thank you, Ms. Tarun. Thank you. Thank you. That's interesting. How about you, Anurag, Erica, Niru? In process. I think you all are in process. I can see Anurag. What have you made? Please show a little closer. Yeah, no worries. Beautiful, Disha. Thank you. How about others? We have a lot of people. How about others? I can see yours, Anurag. Please try to bring it closer. Wow, that's interesting. Thank you. Thank you, Miss Harpreet. That is so big and massive. Thanks for that compliment. Good evening, Dr. Robin. Are you able to hear me? Okay, he's connecting. We have the expert of the day with us today.
Sorry, audience, for the delay. I'm trying to fix and I'm trying to help him. Just give us a minute. And till then, keep making your logo, be creative, think about yourself. I am really sorry for the delay, but I'm trying to help him out. Maybe he's stuck up somewhere. But till then, I'm really excited to see others' logo. If you have made Dimple, Sakshi, Sweetie, or Erica. Okay, Dimple, water jug. Okay, that's interesting. All right. What about others? Srijil is trying to show, wow, I think you want to depict that you are a dreamer, you want to fly high. That's beautiful. Wow, you have S in the middle and you want to fly high in the sky. That's great. Thank you. I, in fact, find this activity interesting. And every time I try to make my logo, I end up making something very different because I think there are a lot of aspects to our life. Thank you, Miss Niru. Thank you. Thank you, Paneet. All right. Thank you. Paneet wants to show that she's a princess. All right. I end up making every time different because I think there are a lot of aspects to a life. If I try to cover that what kind of person I am, I make something different. But when I think of maybe what I'm doing presently now or what I was as a child, so every time I have a different logo. But that's interesting. That's self-analysis. मुझे अपने बारे में जानने का मौका मिलता है. Okay, happy is my logo. All right. Thank you, Harpreet. Thank you. And it would be more interactive if every one of us could switch on the video.
Thank you. Thank you, Harpreet, for switching on the video. Thank you. Eric, I'm really excited to see your logo. Have you made it? You have been drawing for a long. I think your logo is going to be the creative one. All right. I think we are done with the activity quite much. Now I have something more interesting to do. Okay, thank you, Erica. Wow, I think Erica wants to capture the world, and she is a globe trotter. Interesting, Erica. Thank you. Thank you. I saw so many creative ideas. Every one of us had a different logo. It means everyone is absolutely unique. Thanks for doing this activity, and thanks for sharing your logos with me. All right, now I'm going to take you into relaxation. That's a relaxation technique. So now please feel free, feel relaxed the way you want to sit. And also if you're holding something, just try to release everything. And whatever posture is comfortable and relaxing for you, please take up that. And if you want to close your eyes, close your video, please feel free to do that. And try to observe the breath. ऑल राइट सॉरी, बिल्कुल आज का सेशन हिंदी में ही है और हम हिंदी में ही बात करेंगे. तो अगर आप जो भी पोस्चर में कंफर्टेबल हैं, जैसे आप बैठना चाहते हैं बैठिए, और वीडियो ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं, आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए. आपको यहाँ पर गर्माहट, ठंडक फील होती है, सेंसेशन, वाइब्रेशन, आपको सांस दोनों तरफ से आता जाता दिख रहा है, हैवी है, जिस तरह का है, डोंट ट्राई टू चेंज इट. आप उसे कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश ना करें, जैसा है ऑब्जर्व करें. फॉर द नेक्स्ट 2 minutes I will try to be silent and you try to observe the breath. Anything and everything that is, उसे आप महसूस करिए. अगर आपको कुछ महसूस ना हो रहा हो तो आप अपनी ब्रेथ थोड़ी हैवी कर सकते हैं, थोड़े लॉन्ग और डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं, एंड देन फील कि आपको क्या फील हो रहा है. ऑल राइट, आप वापस आ सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज आराम से, एंड प्लीज फील फ्री टू शेयर कि टाइप कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में कि आपको कैसा फील हुआ. आई थिंक इट वाज जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट वाज जस्ट फॉर अ मिनट. आपको अच्छा लगा, बहुत थॉट्स आए, आपको मुश्किल लगा, आपसे फोकस नहीं हो पाया बिल्कुल भी, जैसा भी लगा आप प्लीज चैट बॉक्स में शेयर करिए. थैंक यू. Thank you. Thank you. Yes, it is definitely relaxing. And good evening, Hello. Dr. Robin. Good evening. We can't hear you, Dr. Robin. I think there's some audio issue at your end. Can you hear me now? आपकी आवाज नहीं आ रही, sorry. अब आ रही है? We can't hear you, in fact. अभी भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? Okay, you can hear him? All of you can hear him? मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं आपको सुन पा रहा हूँ कैसे अनन्या? Okay. I can hear you. Yeah, I can hear you now, sir. Thank you so much.
Welcome, welcome. So, sir, I think now we can formally begin the session. I will start the session by introducing you. And I would like to thank each and everyone जो भी आप सब यहाँ हमारे साथ जुड़े इस सेशन में. Thanks a lot. So, छोटा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं डॉक्टर रॉबिन के बारे में, सो उन्होंने MBBS और MD करी है न्यूरो साइकेट्री में. वो एक्स रेजिडेंट रहे हैं IHBAS दिल्ली में. वो अमृतधारा हॉस्पिटल के साथ बहुत साल काम कर चुके हैं एज न्यूरो साइकेट्रिस्ट. और करनाल के वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं जो अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ. सिर्फ उन्हें एज अ क्लाइंट नहीं बल्कि एज अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए वो बहुत काम करते हैं. एंड नाउ ही हैज हिज ओन हॉस्पिटल बाय द नेम डॉक्टर रॉबिन्स न्यूरोसाइकेट्रिक clinic in Sector 7. So, Dr. Robin, thanks a lot for joining us. It's our honor to have you. Thank you so much. Thank you so much for such a nice introduction. Thank you, Doctor. And I think now it's time to begin with the session. और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ. इस बारे में लोग इतना बात नहीं करते कि मेंटल हेल्थ मोर ऑफ यूथ से एसोसिएटेड है. कि अगर हम बात करते हैं समझना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, लेकिन आज हमारे साथ बहुत ही डाइवर्स एज ग्रुप से लोग जुड़े हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी. तो अगर मैं बात करूं डॉक्टर रॉबिन, आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी. हमारी सोसाइटी में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं कि बच्चों को अगर हम ज्यादा प्यार से बात करेंगे वो सिर पर चढ़ जाएंगे, ज्यादा पैम्पर हो जाएंगे, उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए कि पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी में रहकर बात करें. कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर होता है कि आप बच्चों से इतने फ्रैंक मत होइए. तो आपकी इस चीज पर क्या ओपिनियन है कि कैसे पेरेंट्स का रोल हमारे मेंटल हेल्थ में रहता है? तो ऑल डेस्क इज योर्स सर. Yes, thank you so much. पेरेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है किसी की भी डेवलपमेंट में. हम बात करते हैं कि जितने भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं लाइफ में, या हमारी पर्सनैलिटी जैसी भी है, वो ऑल डिपेंड करती है अबाउट हाउ वाज आवर चाइल्डहुड. मतलब हमारा बचपन जैसा था उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हमारी एडल्ट पर्सनैलिटी कैसी है. या एडल्ट अगर हमें कोई भी मेंटल हेल्थ इशू होता है, या हम बहुत पॉजिटिव हैं, या हम जो भी कर रहे हैं, सारी चीजों पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारी जो चाइल्डहुड है वो कैसा रहा है. और चाइल्डहुड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी पेरेंटिंग कैसी रही है. तो इन टोटल हम जो भी हैं आज एडल्ट लाइफ में, कोई भी उसकी पेरेंटिंग का इस चीज पे बहुत बड़ा असर है. तो पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले तो मैं ये समझाना चाहता हूँ पेरेंटिंग है क्या, व्हाट इज पेरेंटिंग. क्योंकि ना फॉरेन में और इंडिया में बहुत ही डिफरेंट कल्चर है अबाउट पेरेंटिंग. मेरे को लगता है कि एक इंडियन ही है जो पेरेंटिंग का सही मायना समझ सकता है. अनन्या और मैंने बात करी थी we have to talk today much in Hindi because we have a diverse एज ग्रुप एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, तो हम सबको समझ आ सके, है ना. तो मतलब फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करूं और इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा भी है. क्यों मैं कहना चाहता हूं ऐसा, क्योंकि ना इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा अटैच रहते हैं. मगर हमें कैसे अटैच रहना है, कितना अटैच रहना है, जैसे आपने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कई बार हमको लगता है कि उनको बहुत छूट दे देना भी गलत है और बहुत उनको टाइट कर देना भी गलत है. तो ना पेरेंटिंग को मैं एक समझाना चाहता हूँ एक तरीके से कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो टीचर और फ्रेंड इन दोनों के बीच का पार्ट है. अगर मैं एक पैरामीटर नाप लूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो होगा लाइफ में वो टीचर होगा. और सबसे ज्यादा आपके साथ अगर फ्रेंडली कोई हो सकता है, आपकी हर बात मान जाने वाला, जो आप लाइफ में खराब कर रहे हो वो भी मान जाने वाला, वो एक फ्रेंड हो सकता है. तो टीचर और फ्रेंड के बीच में आता है पेरेंट्स, बट उनका रोल जो है वो दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बिहेवियर में और हमारे फ्यूचर एक्सपेक्ट में. तो पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए? देखो, पेरेंट का ना रोल ये होना चाहिए, हर पेरेंट ना अपने बच्चे को समझता है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है. और हर बच्चा जो है वो भी आज के टाइम में बहुत इंटेलिजेंट है. हर बच्चा, मैंने 4th क्लास का, 3rd क्लास का भी बच्चा देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, अपने बारे में बहुत कुछ समझ सकता है, जान सकता है.
तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टीचर की तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है बच्चे को। पेरेंट्स को टीचर भी नहीं बनना और फ्रेंड भी नहीं बनना, पेरेंट्स को पेरेंट बनना है। वही अगर हम कर पाते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। कई बार ना मतलब हम जाते हैं और हमको कोई काउंसलर कहता है कि हमको ना बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाना है, हमको बच्चों के फ्रेंड्स बनना है। फ्रेंड्स नहीं बनना है हमको, है ना। हम पेरेंट्स हैं और वो एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, उससे अच्छा तो कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। तो हाउ हमें कैसे पेरेंट्स बनना है? तो हमें टीचर भी नहीं बनना है। टीचर क्या करेगा, बच्चे को हमेशा ना वो डांटेगा, उसको उसकी गलती सिखाएगा, उसको उसको सिखाएगा कि आपको ऐसे करना है। तो हमेशा हमें उसको सिखाते नहीं रहना है। हमें क्या करना है, हमें उसको हमेशा डांटना नहीं है, उसको मना नहीं करना, उसको कंट्रोल नहीं करना। टीचर का एक कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है बच्चों के ऊपर। टीचर कैसा है कि 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और टीचर फ्रंट में है। टीचर सब बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, टीचर का एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है। बट पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर जरूरी नहीं है कि हो। पेरेंट्स का सिर्फ इतना रोल होना चाहिए, उनको पेरेंट्स को समझना है कि बच्चे को हमें लिबर्टी देनी है, मगर उसको सिखाना भी है। अगर हमारा बच्चा है, हम अगर उसको सिखाते हैं चीजें कि बच्चे ये चीज करना गलत है और ये चीज करना क्यों गलत है, ये चीज करना अच्छा है और ये चीज क्यों अच्छी है, बस हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है। हमको अगर हम अपने बच्चे को अच्छे से सिखा पाएंगे तो वो जरूर कहीं ना कहीं, वो आज के बच्चे, आज की जनरेशन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खुद से डिसीजन ले सकती है। तो हमको खाली अपने बच्चों को सिखा देना है, हमको अपने बच्चों को बता देना है। सिखाने से भी ज्यादा जरूरी है बता देना है, उनको अवेयर करवाना है कि क्या चीज बुरी हो सकती है लाइफ में और क्या चीज अच्छी हो सकती है। डिसीजन बच्चे को लेने दें और फिर बच्चा वही डिसीजन लेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप उसको फोर्स करेंगे ना तो शायद वो डिसीजन वो ना ले पाए। तो इससे जरूरी है कि उसको हम सिखा दें कि अगर हम उसको सिखाना चाहते हैं कि अल्कोहल बुरा है, तो हम सिर्फ उसको ये मत कहें कि आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल पीने वाले खराब होते हैं। हम उसको सिर्फ ये बताएं कि हमारे लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो शराब पीते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनका उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है और उनकी पर्सनैलिटी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं मानी जाती है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चों का बस हमें, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें बिठा के उसको सिखाना है। इन जनरल हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम घर में बातें ही ऐसी करते हैं जहां से बच्चे सीख जाते हैं। लाइक हमारा ना ओल्ड एज, जैसे जो पुरानी जनरेशन थी, वहां पे ना एक स्टोरी सुनाने का बहुत चलन था कि दादी नानी सब स्टोरी सुनाते थे बच्चों को, और बच्चों की ना लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वो स्टोरीज ही होता था। तो वो जो स्टोरीज होती थी ना, उससे ही बच्चे सीख जाते थे और उनको पता चल जाता था कि लाइफ में क्या चीज बुरी है और क्या चीज अच्छी है। तो एक पेरेंट को वैसा ही बनना है। अब दादी ने बच्चे को कुछ बोला नहीं करने के लिए, बट दादी ने एक इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई और बच्चे ने उस स्टोरी से सीख लिया कि मैं भी ऐसे ही करूंगा। ये पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स का रोल टीचर की तरह कंट्रोल नहीं करना है, ना ही फ्रेंड्स की तरह बोलना कि हाँ हम ये काम करते हैं। पेरेंट्स का रोल एक बहुत ब्यूटीफुल है। हमें आज भी याद है कि दादी ये स्टोरी सुनाती थी, नानी ये स्टोरी सुनाती थी, और वो हमारे जहन में इतनी रह जाती है, वो हमारे रोल मॉडल, हमारे हीरोज बन जाते हैं स्टोरीज में, और हमको भी लगता है कि हम भी अपनी लाइफ को ऐसे ही लिव करेंगे। तो पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को रोल मॉडल देने बहुत जरूरी है। आजकल हम ना अपने बच्चों को रोल मॉडल भी नहीं दे पा रहे। हम क्या करते हैं कि हम अपने घर में बातें करते हैं कि वाह शाहरुख खान बहुत पैसे कमा रहा है, वाह ये मंत्री बहुत पैसे कमा रहा है, तो वाह ये ऐसा हो रहा है। तो मतलब ना हम अपने रोल मॉडल खराब दे रहे हैं। हम एक अच्छा रोल मॉडल बच्चे को प्रोवाइड नहीं, हम तारीफ तो करते रहते हैं शाहरुख खान की और चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हमें रोल मॉडल ही वो देना है बच्चे को जो हम बच्चे से बनवाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चों के सामने अच्छे रोल मॉडल लेने हैं। पहले, उससे पहले क्या जरूरी है कि खुद भी बच्चों का रोल मॉडल बने। जो हम चीज चाहते हैं कि बच्चों में चेंज लानी जरूरी है, पहले हम देखें क्या हम में वो क्वालिटीज हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे जो थे ना, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ओबे करते थे। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब, हम तो अपने ना पेरेंट्स के सामने कुछ बोल भी नहीं पाते थे, कुछ कर भी नहीं पाते थे। अगर हमारे पेरेंट्स ने कुछ भी कह दिया तो हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम ऊपर आंखें उठा के भी देख लें। शायद ना उस समय पेरेंट्स ने ना रोल मॉडल बहुत अच्छे दे रखे थे। आज ना एक 10 साल का बच्चा भी जानता है कि मेरे फादर में क्या क्या खराबी है। एक 10 साल का बच्चा भी जानता है कि मेरे फादर ना ऊंची आवाज में बात करते हैं, मेरे फादर ना मदर को गुस्सा करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, और मेरे फादर अच्छे इंसान है, बट कुछ उनमें खराबियां भी हैं।
वो बच्चा ये भी जानता है कि मेरी मदर में क्या खराबियां है, मेरे फादर में क्या खराबियां है। तो हम जब तक ये खराबियां अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे ना, तब तक हम उनके अच्छे रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे। तो बहुत जरूरी है पहले ये सारी क्वालिटीज जो भी हम बच्चे में चाहते हैं खुद में लाएं। अब हम बहुत टाइम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो खुद तो मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और कोशिश करते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे मोबाइल नहीं चलाना, टीवी नहीं चलाना। और तो ये कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर जो काम पेरेंट्स कर रहे हैं वो बच्चे नहीं करेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे कुलीग्स हैं, बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जिनके घर में ही स्टडी का बहुत अच्छा माहौल है। लाइक पेरेंट्स जो हैं उनके वो बहुत उनकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हैं। अगर पेरेंट्स की रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होंगी तो डेफिनेट बात है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी अपने आप बन जाएंगी। हम कितनी बार देखें हम अपने बच्चों को बचपन में क्या गिफ्ट देते हैं, हम अपने बच्चों को बचपन में बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी बुक्स गिफ्ट कर रहे हैं या अपने बच्चों को खिलौने दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे वहीं से अट्रैक्ट होते हैं, वहीं से वो रोल मॉडल चूज करना शुरू करते हैं। क्या हम क्या हमको बुक्स पसंद है? अगर हमको बुक्स पसंद होगी तभी हम अपने बच्चों को बुक्स गिफ्ट करेंगे या बुक्स के बारे में बातें करेंगे हम अपने घर में। या जब भी हम हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं तो हम आपस में क्या बात कर रहे हैं? हम एक मूवी की डिस्कशन कर रहे हैं, एक पार्टी की डिस्कशन कर रहे हैं, हम घरेलू बातें कर रहे हैं, या हम एक किसी बुक के बारे में, किसी ऑथर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सब से फर्क पड़ता है कि हमारे बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, हमारा बच्चा क्या सीखेगा और उसके उसके संस्कार कैसे होंगे। संस्कार का मतलब ये नहीं होता कि स्पिरिचुअलिटी, संस्कार हर एक चीज होता है कि हम कैसे हैं, हमको क्या चीजें पसंद है, हमको बुक्स पसंद है या हमको घर के बारे में बातें करना, घरेलू बातें करना पसंद है। तो बहुत सारे मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जिनकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं, जो जिनकी रीडिंग बहुत फास्ट होती है, तो हम देखेंगे कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी रीडिंग हैबिट्स भी बहुत अच्छी है। तो अगर हम ये क्वालिटीज बच्चों में चाहते हैं तो पहले हमको अपने अंदर भी ये हैबिट्स डालनी पड़ेंगी, हमको अपने अंदर भी वैसा बनना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि पेरेंट्स खुद अपने आप को चेंज करें। 5 मिनट छोड़ के, है ना? पेरेंट्स खुद अपने आप को चेंज करें, पेरेंट्स खुद अपना बिहेवियर जो है वो अपने बिहेवियर्स में गुड हैबिट्स को बहुत ज्यादा इनकलकेट करें ताकि वो बच्चों के रोल मॉडल बन पाए। सेकंड चीज, पेरेंट्स बच्चों को अच्छे रोल मॉडल चूज करवाने में मदद करें। पेरेंट्स वैसी ही बात करें जैसा बच्चों को वो देखना चाहते हैं। लाइक पेरेंट्स कोशिश करें कि उनका रोल मॉडल कोई डॉक्टर हो, उनका रोल मॉडल कोई सोशल वर्कर हो, उनका रोल मॉडल लाइक अनन्या जो हमारे आज प्रोग्राम कर रहे हैं और इतना सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बच्ची हो, है ना। इंस्टेड की हम उनका रोल मॉडल बना देते हैं किसी एक्ट्रेस को, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम किसी क्रिकेट प्लेयर की तारीफ करते हैं, हम किसी इस तरह के अगर इंसान की तारीफ कर रहे हैं, तो वो बच्चों को वैसा ही, उनको वैसा ही अच्छा लगेगा। उनको मोबाइल खोल के गाने सुनना या उनको मोबाइल खोल के किसी एक्टर के बारे में जानना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके फादर को भी यही अच्छा लगता है, उनकी मदर को भी यही अच्छा लगता है। तो अगर हमको ऐसी चीजें नहीं अच्छी लगती और हमको बुक्स पसंद है, तो बच्चों को भी डेफिनेटली बुक्स पसंद आएंगी। तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, अच्छा रोल मॉडल बच्चों को देना है, हमें अच्छी अच्छी उनको कहानियां सुनानी है जिसके जरिए वो सीख सकेंगे जिंदगी को। बहुत अच्छा है कहानियों का रोल, स्टोरीज का रोल लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल है। आप ये बात समझिए, जो चीज हम कहानियों के जरिए सिखा सकते हैं बच्चों को, वो कभी भी नहीं सिखाई जा सकती, वो किसी और तरीके से सिखाई जा ही नहीं सकती है। तो रात को जब हम बच्चों के साथ सोते हैं तो जरूर उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। हाँ, बच्चों को टीचर की तरह कंट्रोल नहीं करना है, बच्चों को सिर्फ अच्छे और बुरे की सीख देनी है, फैसला उन्हीं को करने देना है और मानना है कि जैसे ही पेरेंट्स होंगे वैसे बच्चे होंगे। और हम अगर बच्चों को पॉजिटिविटी से भर देंगे तो बच्चे जरूर पॉजिटिव रहेंगे। हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कोई हो नहीं सकता दुनिया में। फ्रेंडशिप या कोई भी रिलेशनशिप इससे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि जितना टाइम एनर्जी पेरेंट्स स्पेंड करते हैं अपने बच्चे को डेवलप करने में, उतना टाइम एनर्जी कोई भी दूसरा रिलेशनशिप किसी और रिलेशनशिप के लिए नहीं देता। पेरेंट्स बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी और एवरीथिंग डिवोट करते हैं अपने बच्चे को बढ़ाने में, बट उसको जरूरी है अच्छे से चैनलाइज तरीके से देना। अगर हम बच्चे को बहुत कंट्रोलिंग रह जाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं हमको झूठ बोल के
बाहर जाके, हमारी आंखों से दूर जाके कुछ ना कुछ वो काम कर सकता है जिसके जिसके लिए हम उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम उसको बहुत ज्यादा ढील दे देंगे और सिखाएंगे ही नहीं उसको, दुनिया के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं देंगे, उसको एक अपना अच्छा कैरेक्टर स्केच ही नहीं दिखाएंगे, उसके अगर अच्छे रोल मॉडल उसको चूज नहीं करवाएंगे, तो वो हो सकता है, और उसको ढील दे देंगे तो वो लाइफ में गलत जा सकता है। तो बहुत जरूरी है हम उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, इन सब चीजों को बहुत अच्छा और बहुत बहुत ही कह लो कि टेंडर रखते हुए, बहुत ही उसको सॉफ्ट रखते हुए हम अगर बच्चों को चीजें सिखाते रहते हैं ना, तो बच्चे कभी गलत नहीं जाते हैं। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा मानना है। आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। उनकी लर्निंग पावर, उनकी इंटेलिजेंस पुरानी जनरेशन से हमेशा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। हमें बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट करके, बहुत प्यार से उनको चीजें सिखाना है। वहीं बच्चों का भी एक रोल बहुत बड़ा बन जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स में कोई कमी ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स परफेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ जिंदगी में अच्छा करा हो। मगर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स चाहे उनकी लाइफ में 10 खराबियां हो, बट उन्होंने 100% अपने अपने आप को आपके लिए दिया है। 100% उन्होंने अपने आप को आपके लिए निछावर करा है। उनका जितना भी वर्किंग है, उनका जो भी हार्ड वर्क है, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उनकी किसी भी कमी को लेके या किसी भी उनकी, आपको जो भी उनके साथ कन्फ्लिक्ट लगते हैं, उनको कन्फ्लिक्ट की तरह मत लीजिए। उनकी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को चाहिए कि वो जरूर भगवान की तरह ट्रीट करें। उनकी हर बात को, हर अच्छी बात को अपने अंदर जरूर लीजिए। अगर उनमें कोई कमी भी लगती है तो पेरेंट्स के साथ रिफ्ट मत लाइए। अगर वो आपको नहीं समझा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं, जब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चों का भी रोल बनता है कि अगर वो भी, उनको भी मन में कोई बात है, तो अपने पेरेंट्स के सामने रखिए, उनको प्यार से समझाइए। उनके सामने वो टॉपिक को आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि हम एक चीज पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट कर पाए, बता पाए, उनको शायद सिखा भी पाए और उनको अपने बारे में, अपनी जनरेशन के बारे में बता भी पाए। तो यहाँ पे आपका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी कमियों को लेके अपने आप को डाउन मत करिए। अपने आप को, अगर पेरेंट्स बहुत चिड़चिड़ापन है, गुस्सा करते हैं, तो आप अपना बिहेवियर मत चेंज करिए। अपने अंदर गुस्सा मत लाइए। पेरेंट्स के साथ ऊंची आवाज में मत बात करिए। अगर पेरेंट्स करते भी हैं तो आप अपने, जब मैं कह रहा हूं आप इंटेलिजेंट है, तो आप अपनी इंटेलिजेंस से, आप अपने कम्युनिकेशन सेंस से, आप अपनी सोबरनेस से उनको सिखा सकते हैं कि ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है, ऐसा भी रहा जा सकता है। आज की दुनिया में ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बच्चों का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सिखाने में। बट हाँ, उनको सिखाने का तरीका बच्चों को आना चाहिए। बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं सब बच्चों को कहूंगा कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इतने इंप्रूव करो कि आप पेरेंट्स को भी सिखा पाओ, आप अपने पेरेंट्स को भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई पेरेंट्स आपको कोई भी सलाह दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में दे रहे हैं, चाहे वो आपको गुस्सा करके दे रहे हैं, चाहे वो आपको दोस्त बना के दे रहे हैं, चाहे वो कैसे भी दे रहे हैं, वो आपके गुडनेस के लिए ही है, आपके बेनिफिट के लिए ही है। ये मत देखो कि वो आपको कैसे दे रहे हैं, है ना। उनके इस चीज पे नहीं जाना है कि वो गुस्सा कर रहे हैं या प्यार से दे रहे हैं या कैसा हो रहा है। आपका क्या फर्ज है कि उनकी सलाह को एक बारी जरूर सुनो। अगर कोशिश करो, लिख सकते हो तो लिख लो, वो अच्छे के लिए ही है। फाइनली आपका उससे बेनिफिट ही होगा, आपका उससे उधार ही होगा, आप उससे बड़े ही बनोगे, क्योंकि वो अपना पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ का पैसा, पूरी लाइफ का सब कुछ आपको ही देना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप उनकी अच्छी चीजों को अपने अंदर लाओ। ठीक है, और ये एक बॉन्ड है, इससे बढ़िया, इससे अच्छा बॉन्ड नहीं हो सकता। इसको और ब्यूटीफुली डेवलप करो। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर रॉबिन। आपने इतने अच्छे से एनवायरनमेंट की बात करी कि कैसे जो पेरेंट्स हमें एनवायरनमेंट देते हैं, वैसे ही उसी तरह से हम शेप होते हैं। क्योंकि जब हम, आई थिंक जब हम पैदा होते हैं, कोई ऐसा हम फिक्स नहीं आती कि हमने ऐसे
लाइफ लीड करनी है, बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का रहता है। मुझे भी एक चीज़ अपने लाइफ से याद आती है इस बात पर कि जब हम छोटे थे तो एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने टीवी का केबल कटवा दिया था। वो इसलिए था क्योंकि जब मेरी सिस्टर अराउंड 1-2 इयर्स की थी, जब वो चलना सीखी, तो वो एकदम से टीवी के पास जाकर बैठ गई और मम्मा जब उन्हें भुलाने की कोशिश करी थी तो उन्होंने सुना नहीं। तो उसके बाद मेरी मदर को रियलाइज हुआ कि शायद अगर हम टीवी चला कर रखेंगे तो वो भी ऐसा ही सीखेगी। तो उस दिन के बाद मैं शायद 16 इयर्स की थी जब हमारे घर में टीवी आया और हम पहली बार सिनेमा हॉल गए। तो कई लोगों को लगता है कि हम कंजर्वेटिव हैं, बट मुझे लगता है कि उस चीज ने हमें बहुत हेल्प किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एक सोच होती है। टीवी बंद करने से कंजर्वेटिव नहीं होते। आप दुनिया के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तो बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं हो। आपकी सोच जो है वो इंटरनेशनल है ना। तो कंजर्वेटिव एक सोच होती है, और हमारे टीवी कट जाने से या हमारा मोबाइल ना चलाने से हम कंजर्वेटिव नहीं बन जाते हैं। आज की टेक्नोलॉजी अगर हमें नहीं आती है तो हम कंजर्वेटिव नहीं होते हैं। बट अगर हम पूरी दुनिया का भला करने की सोच रहे हैं, हम कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करने की, हम दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं है। हम तो बहुत ही ओपन हार्ट और बहुत ही बड़ा सोच रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा किया था आपके पेरेंट्स ने, और मैं कुछ होप करता हूँ कि और जो भी हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं, ऐसा जरूर कुछ करना चाहिए। और बिल्कुल, मैं थैंक यू सो मच डॉक्टर रॉबिन इतने अप्रिशिएटिंग वर्ड्स के लिए। और मैं बिल्कुल उस बात पे आपसे अग्री करती हूँ कि रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी हैं। जो रोल मॉडल्स हमारे आसपास है, जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके हम दोनों एस्पेक्ट्स जानते हैं कि कितने ज़्यादा वो इस तरह के चैलेंज में उन्होंने कैसे अपने आप को रिजिलियंट प्रूव किया, किस तरह के चैलेंजेस में वो गिरे। तो बिल्कुल रोल मॉडल्स। उससे रिलेटेड एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे डॉक्टर रॉबिन आपसे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे बढ़ती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये टबू और ये जो आजकल मिथ था कि बच्चों को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, टीनेजर्स और यूथ हमेशा एंथुसियास्टिक रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो वो चीज़ हमें दिख रही है कि यूथ को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस टाइम पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कम्युनिकेट वो कैसे कर रहे हैं, बच्चे को कैसे समझ रहे हैं, तो उस पर अगर आप बात करें कि कैसे उनका रोल क्या तो रहेगा। अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे समाज में बहुत कॉमन हो गई है। मेरी ओपीडी में 6 साल का बच्चा भी आता है जिसको एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है, और 90 इयर्स के, 100 इयर्स के बुजुर्ग भी आते हैं जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है। मेंटल हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी नर्व्स वीक हो जाती हैं, उसके लिए कुछ टॉनिक दिए जाते हैं जिससे वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे पूरा अपना एक चाइल्ड विंग डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ पे हम खाली बच्चों को हम ट्रीट करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की साइकोथेरेपीज होती हैं, ताकि हम अपने बच्चों को और अच्छे से मेंटली पॉजिटिव और मेंटली नरिश कर पाए, उनका मेंटल हेल्थ और पॉजिटिव हो पाए, वो और मेंटली स्ट्रांग बन पाए अपने फ्यूचर करियर के लिए, ग्रोथ के लिए और सोसाइटी के लिए। तो ऐसे ही पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल बनता है कि पहले तो अपने बच्चों को जानिए, अपने बच्चों को समझिए। अगर कभी भी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम ना होने दे, कभी भी उनको हमेशा पॉजिटिविटी की साइड दिखाइए, उनको हमेशा एक दुनिया का एक अपर वर्जन दिखाइए कि वो और क्या कर सकते हैं दुनिया के लिए, वो और क्या कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए। उनको कभी भी ना छोटी सोच मत दीजिए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो, नहीं, आप इस दुनिया के लिए, आप इस सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो, आप भगवान के लिए क्या क्या कर सकते हो, उनको ऐसी सोच दीजिए। जब हमारी सोच बहुत बड़ी होगी, हम बहुत पॉजिटिविटी से भरे होंगे, तो हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगी। दूसरा, उनको एक्सरसाइज करने के लिए, उनको मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए, खेलने के लिए बहुत उनको मोटिवेट करिए, उनको बाहर जाने के लिए बहुत मोटिवेट करिए, उनको मोबाइल और टीवी से बिल्कुल दूर रखिए। थर्ड थिंग, अगर फिर भी किसी भी बच्चे को हमें लगता है कि वो उसका कॉन्फिडेंस कम रहता है, उसको होने में प्रॉब्लम आती है, वो स्टैमर करता है, या उसका पेशाब बिस्तर में निकल जाता है, या हमें लगता है कि वो रोता बहुत ज्यादा है, या चीखता चिल्लाता बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाने से भी हिचकिचाइए मत। उसको जरूर डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसको एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। वो उनकी बहुत मदद कर सकते हैं आप लोगों की, क्योंकि ये बिहेवियर अगर चाइल्डहुड में ही अगर ठीक नहीं होता है, तो बाद में ये बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के साथ हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा लाइफ में। तो उसको बहुत जरूरी है पहले ही टैकल कर लेना।
और बहुत इजीली ये टैकल हो भी जाते हैं। तो पेरेंट्स का फर्ज बनता है ये तीनों चीजें कीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए, लाइफ का बड़ा व्यू दिखाइए, एक्सरसाइज डेली करवाइए, अगर लगता है तो डॉक्टर के पास जाइए। जी, थैंक यू सो मच। बहुत हेल्पफुल था और एक्चुअली हमें कमेंट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में कि बहुत इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग सेशन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, एक और क्वेश्चन इससे कनेक्टेड, हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे जैसे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आजकल हम क्लासिफाई करें तो दो तरह की है। एक है टॉक्सिक पॉजिटिविटी कि हम कोई भी प्रॉब्लम है, कई लोग जैसे हम व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं या चीजें सुनते हैं कि फेक पॉजिटिविटी है कि हम जब अच्छा फील नहीं भी कर रहे तो हम अपने आप को जबरदस्ती मैसेज दें कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, फेक पॉजिटिविटी की तरफ हम जाएं। या दूसरा है कि हम उस प्रॉब्लम को कोप करके दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जाएं कि देयर इज स्टिल होप। तो उस पर आपका क्या कहना है कि कैसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है और वो कैसे हमें अफेक्ट करती है? देखो, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ना वैसे इस चीज को बोला जाता है जो सोशल मीडिया पे फेक पॉजिटिविटी है, जो दूसरे लोगों की हमको दिखती है कि दूसरे लोग क्योंकि अच्छी फोटोग्राफ हमेशा डालेंगे, पार्टी फोटोग्राफ डालेंगे, तो हमको लगता है सब लोग पॉजिटिव है, खाली मैं ही दुखी हूँ। इसको हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोल सकते हैं। मगर अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो मेरे को लगता है कि लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी, जिसको पार कर पाना मुश्किल है या नामुमकिन है। ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हमारी 99% प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, जिसको हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, और वो लाइफ की कोई रियल प्रॉब्लम भी नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है 1% प्रॉब्लम जरूर रियल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम होप रख सकते हैं, उसके लिए हम एक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम स्पिरिचुअली हमेशा, मेरे को लगता है, अटैच रहना चाहिए। गॉड हमको जरूर मदद करेगा उन 1% प्रॉब्लम्स के लिए। तो उन 1% प्रॉब्लम्स के लिए कोशिश करिए, हार्डवर्क करिए, स्पिरिचुअली अटैच रहिए। बट 99% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है या सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है। सीरियस 5 मिनट उनको को बस में। तो 99% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन 99% प्रॉब्लम्स को जो हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती है, उनको खुद से दूर करिए। वो क्यों होती है 99% प्रॉब्लम? लाइक किसी का वेट बहुत बड़ा हुआ है, किसी को चिड़चिड़ापन रहता है, किसी को मतलब वो अपने काम पे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं, शायद हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम अपने आप को, माइंड को कूल या मेडिटेट नहीं करते हैं, हम अपने काम को इग्नोर करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन हम करते रहते हैं कि टालते रहते हैं आप अपने काम को। इस करके ना हमारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम अपना काम एक शेड्यूल में करेंगे, रात को टाइम पे सोएंगे, सुबह टाइम पे उठेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अपने काम को टालेंगे नहीं, हर किसी से अच्छे से बात करेंगे, एक काइंडनेस जरूर रखेंगे, ग्रेटिट्यूड रखेंगे, तो हमारी 99% प्रॉब्लम्स, मेरे को लगता है, लाइफ की सॉर्ट आउट हो जाती है। और जो 1% प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है तो दूर भी हो जाएगी। भगवान ने सारे सोल्यूशन बना के ही हमको भेजा है, और जरूर उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होगा। नहीं तो फाइनली गॉड तो है ही है, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी लाइफ की। हमें घबराना नहीं है। जी, बिल्कुल, थैंक यू उस चीज़ के लिए। मैं जानती हूँ डॉक्टर रॉबिन आप बहुत बिजी हैं और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपको बीच बीच में बुलाया जा रहा है। सो आई थिंक हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं, खासकर इंडियन सोसाइटी में, ऐसे रोल दिया जाता है, एक पोजीशन दी जाती है जिसके कारण एक तो जनरेशन गैप फील होता है कि वो हमसे बहुत बड़े हैं, और एक पोजीशन कि वो सिर्फ एडवाइस और हमें ही सिखाएंगे। एक वो जैसे आपने कहा कि टुवर्ड्स फ्रेंडली नहीं हो पाते। तो व्हाट अबाउट दैट कि वो अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर किसी पर्सन को है, यंगस्टर को है, लेकिन अगर वो उस एडवाइस और गाइडेंस की पोजीशन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हमारे पेरेंट्स को भी अवेयर होना जरूर है। हमारे पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा कि उनका टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। पहले फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत होती थी, आज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। और शायद आपका मिथ्स पे एक सेशन हो चुका है, तो थोड़े से मिथ्स मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है, वो हमारी नर्व्स के वीक हो जाने से होती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर मेडिकेशंस के रूप में, कुछ टॉनिक कह लो, हम देके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे हमारी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो हमें ये जो मेडिकेशंस होती हैं, ये कोई लाइफ लॉन्ग नहीं होती, इसकी एडिक्शन नहीं होती, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत ही कुछ टाइम के लिए एज ए टॉनिक हमको देनी होती है, जिससे हमारी ये सारी मूड की प्रॉब्लम, हमारी वरीज, हमारा डिक्रीज कॉन्फिडेंस,
हमारा बॉडी पेन बहुत सारे हमें रहते हैं, माइग्रेन का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, छाती में दर्द, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी नर्व्स से रिलेटेड होती हैं, जो नर्व्स के स्ट्रांग हो जाने से बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। मेरे ख्याल से मेरी ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो 3 to 4 मंथ्स में मेडिकेशन फ्री हो जाए। तो इन मेडिकेशन से, इन दवाइयों से कोई ऐसा साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ भी चीज नहीं होती जिससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो। ठीक है, तो अगर हम, तो इस चीज के लिए हमारे पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है कि क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कैसे ठीक हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। और नॉलेज रहेगी, पेरेंट्स जानते होंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को रोकेंगे नहीं, अपने बच्चों को वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे और अपने बच्चों को हेल्पफुल कर पाएंगे। और इवन बच्चों में नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं जो आपस में, जो कहीं ना कहीं इन्हीं सब प्रॉब्लम से कारण आपस में जूझ रहे हैं। उनको लगता है कि शायद मूड जो है वो, यही मूड स्टेट जो है वो नॉर्मल होता है, बट वो जानते ही नहीं है कि मूड स्टेट एक बहुत एक पॉजिटिव और एक पीसफुल मूड स्टेट भी हमारा हो सकता है, एक पीसफुल माइंडसेट भी हो सकता है, और वो पीसफुल माइंडसेट हमारा नॉर्मल है, ये अनपीसफुल माइंडसेट हमारा नॉर्मल नहीं है। अगर हम एक डॉक्टरी सलाह ले लेंगे, अगर हम कुछ नर्व टॉनिक ले लेंगे, तो हम उस पीसफुल स्टेट को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों को जाने, इन सब चीजों को समझे, जो आज की नई चीजें हैं, जो नई प्रॉब्लम्स हैं, जो आज नई थेरेपीज आ चुकी हैं, उनको जानना और लर्न करना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो शायद यही मैं करता रहता हूँ, अपनी सोसाइटी को अवेयर करता रहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी भी है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर रॉबिन। अगर आप में से किसी के कोई क्विक क्वेश्चंस हैं, आप डालना चाहते हैं, चैट बॉक्स पे डालिए। बाकी हम सब देख ही रहे, डॉक्टर रॉबिन काफी बिजी हैं। थैंक यू, आपने हमारे लिए इसके लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। आप सबको मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हो, किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9604904657। आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, किसी की भी कोई क्वेरी हो, आई विल रिप्लाई। 9604904657। आप अनन्या से मेरा नंबर ले सकते हैं। जी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आप हमारे साथ आज जुड़े, और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर रॉबिन को इतना इंफॉर्मेटिव था। ओके, तो हमारे पास एक क्विक क्वेश्चन है डॉक्टर रॉबिन, हाउ कैन वी रिड्यूस द जनरेशन गैप? तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डॉक्टर रॉबिन ने इसको आंसर कर दिया कि एक बीच का रोल रहता है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट समझना है ना। हमें समझना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे बच्चों को बहुत नॉलेज है, तो हम कहीं ना कहीं उनको अपने बराबरी ले आएंगे। और बच्चों को, जब बच्चे एक कम्युनिकेशन पेरेंट्स से करना सीख जाएंगे कि हमको पेरेंट्स को कैसे रिस्पेक्टफुली समझा सकते हैं, तो वो अपनी जनरेशन से उनको इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे। तो हमको उनको अपनी जनरेशन से इंट्रोड्यूस करवाना है, बट बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। जी, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर रॉबिन, हाउ टू इनकरेज पेरेंट्स फॉर डूइंग एक्सरसाइज? शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि हम पेरेंट्स को किस हिसाब से इनकरेज रखें किसी चीज। आप डेली जाओ, मैं अपनी मदर को डेली एक्सरसाइज करने के लिए लेके जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे को टम्मी निकल गया है तो मेरे साथ चलो एक्सरसाइज करने के लिए। तो उनको, वो जानते नहीं है कि मैं उनके लिए जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक जब हम चाइल्डहुड में हैं तो हमारे लिए वो रोल मॉडल्स बन सकते हैं, बट एक एज के बाद कहीं ना कहीं हम उनके लिए रोल मॉडल्स बन सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंस्पायर करें, और ये वाइस वर्सा दोनों तरफ से जर्नी है। एंड यस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thanks a lot. थैंक यू। Thank you. Have a good day. Have a great time. ਉੱਥੇ ਬਸ ਹੋਗੇ ਬੈਲ ਵੱਜੀ Uh, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਨੰਬਰ I'm so sorry. So we tried an activity today. So if you get time, try that relaxation technique, and do share tomorrow that how you feel about it. See you all tomorrow. Thanks for joining us in the session. It was great. Thank you.